Hello friends, I am here to attend Irova meeting for NCR Delhi members. Behind me is the RS Maj Mandir. So in this Mandir we are going to have our meeting here. Toward my left side. This is Horse Car metro station which is about 1.5 kilometers. This is on yellow and magenta line. On my right side, this is Malviya Nagar metro station. This is on yellow line. Lot of e-rickshaws are available and you can very conveniently come here. So even in the RS Maj Mandir there is ample parking space. So we'll go inside and we will see what is the latest for superannuated Indian Oil officers. Come with me. PRMS लेकर के मेडिकल बेनिफिट लेकर के पीछे पड़े हुए थे कि इसमें इम्प्रूवमेंट लाने का है, इज ऑलरेडी अनड्यूली डिलेड। और कुछ मिलने की उम्मीद भी जाग गई थी क्योंकि मैनेजमेंट वाज आल्सो इन अ पॉजिटिव माइंड, दे वर आल्सो थिंकिंग पॉजिटिवली व्हाट टू डू अबाउट इट। एंड वी इन आवर डिस्कशन ब्रॉट आउट द फैलेसी इन द thinking and approach of management to PRM and PF. Whereas they want this PRM PF post-retirement medical benefit facility scheme to be contributed by the serving employees. We offer our viewpoint to them in a manner of containing the approach of management that PRM PF is the liability or is the obligation of the corporation, whereas you are wanting the serving employees to contribute to it, which is patently wrong. In fact, I as an officer of the company, since it was introduced in 2007, up to the date of my retirement, I had also contributed to it, which was wrong. PRMS was a scheme offered and introduced by the company for the officers to remain with the company. It was made more stringent later on when it was obligatory on the part of the company to give us our reasonable benefit as it prevails in the current situation. 2012 के रेट से हमें दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, आज हमें जो भी दवाइयाँ मिलती है 2023 के, you see the gap which has come in. But they are being guided by DP. The last meeting that we had with the management, 11th November with the director, 27th November with the PHR. DP is holding that PRM PF is a part of your 30% retirement benefits, which is wrong. Retirement benefit should comprise of the serving officer, PF, gratuity and pension, SME pension. Medical benefit is the liability of the company because we work for the company. We do not work for the serving employees that they should contribute to our medical needs. That is the fallacy they see. They were appreciating also. Management team was appreciating this viewpoint. In fact, they shared with us that in last meeting they took up the matter through SCOPE, the union of all PSUs, with DP. But DP, having understood the rationale behind the contention of the management, they still they did not act because they are also governed by some other his master advice. Somebody else is the boss of DP also. We suggested some course of action. That until a change is made in the current policy of the government about this benefit, you will have to take some other decision. We had suggested. But you have seen that I do not know who to attribute it to. Whether it is
a desire of providence, but it is outlined that you can see the condition of your board. Director HR itself is gone, the post is vacant. Director Finance is not there. That is also an case. Other directors are retiring. Fortunately, in case of pipeline, the name has already been declared during the period. Director R&D is also going. In the given condition, whether the board or the EC of the board can take a decision on the conditions of retired officers and what we have been asking for is a matter of postulation or conjecture for us. In fact, on second page, we have written a letter to Director HR, in which we have given all our points that we want the management to consider, in which besides PRLS, in which the date on which the management is going to issue a circular on the revision of the domiciliary benefits, the hospitalization benefits, the miscellaneous expenses, there are other points also we have enumerated. We say that SAPF in its form, when it was introduced on 1st November 1987, whatever it was, it should be introduced and restored and introduced to us. Management has taken a decision to terminate it, which we do not agree, and we want it to be read. And then we should get what benefit was assured in that scheme. The benefit being 40% of our last paid wrong, salary, basic pay and DA. That is what we want to understand, that what we were given to understand. We do not want the current way of 10-11%, 10%, hardly we get 11-12% of our last paid wrong. So we have now insisted on that introduction. We have also said that you are giving ex gratia. Besides pension under the SAPF scheme, ex gratia should also be paid to all the retired officers. Currently, partial ex gratia is paid to some officers because the pension falls short of the ex gratia amount in the given grade. So whatever be the differential is given partially to our retired officer. We have said no partial, it should be 100% whatever ex gratia is in the given grade should be paid to this. These were not earlier raised before the management, but we have raised these issues now. Guest house rates are revised. 250 rupees in metropolitan with 18% GST. We said for retired officers, you have to give a special dispensation, and the rate for holiday home and guest house should be the same as was prior to this revision. Management has to take a call. And when we meet next, wherever it happens, we will insist upon it. Here the government is not coming to you. You don't have to take the clearance of DP. You don't have to take the clearance of MOPNG. As in the past, whatever was within the reach of the government, of the management, which was within the authority of the board, you have to implement those things, take a decision and implement those things. You are going to insist on this. Similarly, I was 2 days back working on e-Sampath PRMS, submission of it, 2 years I wait, and thereafter when it didn't work, I threw it. उसको रैशनलाइज करना है, उसे सिंप्लीफाई करना है। एक तो आपको कैश मेमो का जितने कैश मेमो में सबका नंबर इंसर्ट करो और उसके बाद देखते हैं अचानक से भूल गया। सेकेंड अटेम्प्ट I made, I had been for 5-6 months. Second attempt I made, again it vanished. Now I have submitted the bill. If the problem comes, I will take up with the corporate office. I will take up. This is the difficulty and handicap that all retired officers are facing. These are the agendas which are in the offing for taking up with the corporate management. Only we wish and let's all pray that the board is composed, all the directors are there in their respective chairs, and we get bold directors on the board so that they take very bold decisions, courageous decisions for the retired officers. Today's director is tomorrow's retired officer. Even this Irova represents the past chairman and directors. They are also our members. They came in full strength, cast their vote when the election took place last year. So
So we can see that how disturbed they are from inside at looking at the PRMS condition of PRMS that we are facing on day-to-day basis. What a day grade officers are very much disturbed by whatever difficulties are being faced by us. With these few words, I request Shri Gupta Sahab, our General Secretary, to take forward the meeting. Thank you very much. थैंक यू रोहिया साहब। मेरे सब भाइयों और बहनों को मेरी प्रणाम और आप सबका मैं वेलकम करता हूँ इस अपनी मीटिंग में जो इस हॉल में सेकेंड टाइम हो रही है। उसकी मजबूरी भी रोहिया साहब ने बड़े अच्छे तरह से एक्सप्लेन की है। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी जब तक कहीं ऊपर से मिनिस्ट्री से या कहीं से ये मैसेज नहीं आ जाता है कि आपका सब कोई कुछ नहीं निकला उसमें कंप्लेंट में, तब तक हमारे लोग कोई भी कुछ करने को तैयार ही नहीं है। इतनी छोटी सी बात जो 38 साल से हमें ये फैसिलिटी मिल रही थी कि इंडियन ऑयल की लोकेशंस पर हम जाके अपनी मीटिंग कर सकें, हर महीने हम आपको मिल सकें बजाय 2 महीने में एक बार के, वो भी फैसिलिटी हमें अभी तक नहीं दी जा रही है। ये थोड़ा सा डर का माहौल है और उसके ऊपर जो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट रोहिया साहब ने बताया, मैं भी थोड़ा सा एक बार दोबारा उसको रिपीट करना चाहूँगा। डायरेक्टर HR 2 तारीख को 2 मई को मैसेज आ गया कि उनका एक्सटेंशन नहीं हुआ है। मतलब ये हुआ कि डायरेक्टर HR ना नया कोई आया है और न ही पुराना गया है। मतलब आप पुराना चला गया और नया कोई आया नहीं। और सिलेक्शन प्रोसेस में कम से कम 6 महीने लगे। इसका मतलब 6 महीने तक हमारे पास कोई डायरेक्टर HR नहीं है। जिस आदमी को दूसरा चार्ज दिया गया है, एडिशनल चार्ज दिया गया है जिस डायरेक्टर को, अब उस डायरेक्टर को अपना जो काम है वो समझ में आता पूरा, मगर ये जो इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना टेक्निकल काम होता है जो HR का, वो उन्हें नहीं समझ आएगा इतनी जल्दी। चाहे उनके नीचे वाले उनको समझाने की कोशिश भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो नीचे वाले हैं उसमें पूरा फेरबदल हो गया। जो ED HR हमारे आए थे यहाँ पर और जिससे हमें बड़ी उम्मीद थी, 1 साल से पिछले 1 साल से यहाँ थे, करीब 9 महीने से यहाँ 10 महीने से थे यहाँ पे मिस्टर मनीष पाटिल, उनका भी सिलेक्शन हो गया है डायरेक्टर HR ONGC और 5 तारीख को वो भी हमारे को छोड़ के ONGC को ज्वाइन कर दिया 6 तारीख को। तो आप देखिए इस कंडीशन में जहाँ चेयरमैन भी रिटायर होने वाले हैं अगस्त में, डायरेक्टर R&D रिटायर होने वाले हैं, डायरेक्टर पाइपलाइन रिटायर हो रहे हैं, तो समझ में आता हम जो एफर्ट हमने किए थे। नवंबर में हमने मीटिंग की डायरेक्टर HR से 11 नवंबर को, 30 नवंबर को हमने डायरेक्टर फाइनेंस की, डायरेक्टर फाइनेंस चले गए, वो चेयरमैन बन गए खेल के। उसके बाद हमने ED HR से मिस्टर मनीष पाटिल से मीटिंग की 27 2 को, और इन सब मीटिंग में हमारे पूरे डिस्कशन हुए हैं हर पॉइंट्स में, जो कि रोहिया साहब ने एक्सप्लेन किया था। उसका असली हमें फायदा क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये सारे लोग ही ट्रांसफर हो गए या प्रमोट होकर आगे चले गए या कहीं और दूसरी जगह चले गए। तो आप देखिए हमारा पूरी मेहनत करने के बावजूद भी हमें कोई एफर्ट्स का हमें रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। और मुझे लगता है कि अगले 5-6 महीने तक भी जब तक कोई स्टेबलाइज नहीं हो जाता है बोर्ड लेवल पे, तो हमें उम्मीद नहीं है कि कोई भी आदमी जो टेम्परेरी चार्ज लेता है वो बोर्ड डिसीजन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। डिपेंड करता है वैसे तो हर इंडिविजुअल के। अब डायरेक्टर HR जिसको चार्ज मिला है मिस्टर सुजय चौधरी, जो अभी डायरेक्टर BD है, तो उनसे हम मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी महीने में हम करेंगे उनसे मुलाकात। और हमारे जितने एफर्ट अभी तक हमने पिछले 6 महीने में किए थे वो सारे हमें कंसोलिडेट करके उनको देने हैं कि ये चीज़ें हमें चाहिए और इस पर आप मेहरबानी करके काम करवाइए। हम उनकी टीम से और डायरेक्टर HR से हम मिलेंगे इस महीने में ही, कोशिश कर रहे हैं हम अपनी पूरी, और उनसे बैठ के ये कुछ ना कुछ समाधान देंगे। जो इश्यूज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं होती है, हम तो हमारा एफर्ट है उस पर तो इमीडिएटली वो डिसीजन दे दें।
और बाकी दूसरे भी अपने कोड को पुटअप करें, जो भी एग्जिस्टिंग कोड है, और उससे मदद लें। जो कंप्लेंट का स्टेटस तो रोनिया साहब ने बहुत डिटेल में आपको समझाया है कि कंप्लेंट खत्म हो गई है, विजिलेंस एंगल से खत्म हो गई है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं पाया गया कि कोई करप्शन था केस का, कोई भी उसका उससे जो भी हमें फायदे होते थे वो होंगे, तभी हम मानेंगे कोई सब ठीक हो गया। हमारी कमेटी ने ये सोचा कि शायद हम लोग रिटायर्ड हैं तो इसलिए हमारी मैनेजमेंट जो है कुछ तवज्जो नहीं दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि रिटायर्ड आदमी कर कुछ नहीं करता। जो सर्विंग ऑफिसर में और रिटायर्ड ऑफिसर में यही सबसे बड़ा फर्क है कि हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं उनसे, उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनको कुछ भी मतलब सिवाय प्रार्थना के हम कुछ नहीं कर सकते उनसे। अभी जो कुछ बताने वाला था वो तो सब हमने आपको बता दिया। अगर आपको किसी तरह की कोई शंका है या कोई सवाल पूछना चाहता है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहता है, तो वो आप बुनियादी हैं, हमें सब हैं, तो आपकी पूरी कोशिश करेंगे कि आपका शंका का समाधान करना है। अब ये ओपन है पहले आप सबके लिए कि अपने सवाल पूछते हैं, तो बाकी छोटे बड़े दूसरे इशू है वो बात कर सकते हैं। एक तो पहले जब इन्होंने हमारा डाटा निकाला तो मेरा निकाला था इन्होंने 12,70,000 के आसपास एचआर वालों ने। उसके बाद जब नया डाटा निकाला तो फिर 36 लाख निकाला, और मैं 36 लाख मेरे को उनको देना है ईपीएफ में जमा कराने के लिए। और सब मेरे को जब मैं रिटायर हुआ तो मेरे को मिला 1 करोड़ के समथिंग, नियर अबाउट 10-15 लाख करोड़, तो मैं तो उतना दे ही नहीं सकता, मैं तो अप्लाई ही नहीं कर रहा पेंशन के लिए। टू बी वेरी अगर मेरे डेथ के बाद मेरा 35 लाख भी मेरी मिसिस का नाम मिले, उसका तो पेंशन ना मिले, मैं तो बैंक कुछ हुआ ना। इससे अच्छा था उसका मेरे को बैंक इंटरेस्ट मिले वो खाता रहो, और मेरी डेथ तो मेरा पैसा वो काम आएगा। मैं सर 15 जुलाई 2016 में मैंने एलपी लू ब्लैंडिंग बिफोर 1 साल पहले मेरे को मैंने ऐसा रिक्वेस्ट की, मेरे को थोड़ा नियर देर नहीं किया चाहिए मेरा, और हालांकि मैं विवासन से इधर था, उन्होंने मेरे को पोस्ट किया था, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, मैंने वीआर से ली, और हालांकि मैं एलिजिबल हूँ। और बिफोर जो एग्रीमेंट ऑफिसर्स के जो पे स्केल रिवाइव है उससे पहले मैंने वीआर से लिए, मेरी नेबरहुड बेसिक थी 53,000 समथिंग। DPS 95 में जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है टू गेट हायर पेंशन, लोगों को बड़े सारे, चूंकि आपकी रिवाइज सैलरी से लोग रिटायर कर रहे हैं तो काफ़ी एफटी अमाउंट बन रहा है उनका पेंशन। लेकिन इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी में गुलाब के कांटे भी हैं, कांटों को बड़ी ध्यान से देखेंगे। उतना दिन हम जिंदा रहेंगे पेंशन पाने के लिए, नहीं जितना पैसा आप दे रहे हैं आप मांगा जा रहे हैं। हमारे पैसा, हमारा जो एरियर बना है नंबर 2, वो कब तक सरकार देगी, इसका अभी तक कहीं पर कोई इंडिकेशन नहीं है। और ये रिवाइज पेंशन हमें कब से मिलेगा इसका भी कोई इंडिकेशन अभी तक नहीं है। और आप कल बोल ही सकते हैं कि आप अपने कहा था, क्योंकि सरकार साफ कहेगी कि हमने तो कभी नहीं कहा कि हम अपने एरिया में वापस करेंगे, रिवाइज पेंशन फलाने डेट से देंगे। इसलिए before you consider opting for higher pension in the new scheme, please look at the flip side of it also, whether you stand to gain or not। नहीं तो जो अपनी लाइफ की अर्निंग जो आपके पास अभी संबल के रूप में आपके साथ है, वो भी आपसे दगा दे देगी, वो भी आपके हाथ से निकल जाएगा। Then you cannot blame anybody. This is all is my experience with this. मैंने बड़ी गहनत धन किया इसका पहले, अब तो ये डिफरेंट हो गया है। सरकार की पैकेटबाजी, EPFO की पैकेटबाजी चल रही है, इस पर डालते जाओ चाहते हैं जितने मिनिमम लोग आए उतना ही अच्छा है। इसीलिए अभी 26 तक बढ़ गया है, रेट बढ़ गया है। बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं, जिससे बहाना मिले कि इसको क्लैरिटी लाने के लिए फिर से डेट पोस्टपोन करेंगे। तो कब से आपको रिवाइज पेंशन मिलेगा, उन्हें उम्र तो बढ़ती ही जा रही है।
और उसके जो होते हैं उम्र बढ़ने के जो होते हैं कच्चे पेंशन वो सब आते जा रहे हैं, करने के लिए कितनी और लंबी जिंदगी बचेगी इसका कोई इशारा सरकार की तरफ से नहीं। एक्सप्रेशन एक सर्कुलर आ रहा था कि आपका जो उसमें देखा तो मतलब 400-500 रुपये बढ़ गए हैं, ABCD FG के ऊपर था, ये किन लोगों को मिलता है? अभी तक तो हमको मिला नहीं। जब मार्च 2016 में रिटायर हुआ था हम लोगों को निकाल जाते हैं पुराने लोगों को एक्सग्रेशिया स्कीम 2003 से लागू हुआ है एंड this is admissible to two categories of retired officers. एक वो कैटेगरी है जो SAPF में कवर्ड नहीं है, माने उनके रिटायरमेंट के बाद SAPF सिस्टम आया 1 नवंबर 1987। बेसिकली एक्सग्रेशिया उन्हीं के लिए आया था। पुराने लोग जो 1 नवंबर 87 से पहले रिटायर कर गए उनके लिए एक्सग्रेशिया स्कीम आया ग्रेड वाइज, A to I डायरेक्टर ग्रेड तक, डायरेक्टर चेयरमैन। देन इट वाज सीन कि एक्सग्रेशिया जो रिस्पेक्टिव ग्रेड्स में दिए हुए हैं, such retired officers who are covered under SAPF scheme उनको पेंशन कम मिल रहा है एक्सग्रेशिया से। So partial exgratia, the differential between the two was extended to the retired officers covered under SAPF scheme. अगर आपका पेंशन आपके ग्रेड में एक्सग्रेशिया से कम है तब आपको डिफरेंशियल मिलेगा, ज़्यादा है या बराबर है तो आपको कोई एक्सग्रेशिया नहीं मिलेगा। दैट इज व्हाट इज दिस स्कीम। क्लियर? नमस्कार जी। अभी रोनिया सर ने एक इशू मेडिकल रिइंबर्समेंट का संबंध के थ्रू सबमिशन की बात की, उसमें कई लोगों ने कई बार ट्राई भी किया है, प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं जैसा कि उन्होंने बताया। अभी सुनने में ये आ रहा है कि फिजिकल फॉर्म में हम भेज देते हैं, रिइंबर्समेंट हो जाती है, लेकिन वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि आपको जो है ई संबंध के थ्रू ही देना है, नहीं तो कोई रिइंबर्समेंट नहीं होगी, आपके फीस वापस कर देगा। तो इस पर थोड़ा सा आपने कंक्लूड किया तो मैं उस समय हम उसमें क्लेम कर रहे थे, कॉर्पोरेशन ने अलाउ किया था कि फिजिकल कॉपी आप नहीं दें सिंस यू कैन नॉट कम टू ऑफिस एंड सबमिट योर पेपर्स, तो हम सब एंट्री कर देते तो उसमें हमें पेमेंट मिल जाता था। 2 साल तक ये चला, कंपनी ने ये दे देगा। अब इस बीच में क्या हुआ, जब फिजिकल कॉपी देने की बात है कि आप फिजिकली जब जमा करें तो फाइनेंस वाले ने एक पैराग्राफ रखा, अब तो हमें एंट्री करनी पड़ती है। अब हर एक जो क्लेम आता है उसका कैश फोमो का नंबर एंटर करना, इसका एंटर करना, तो वो कहता है कि आपको एंट्री करके फिर फिजिकल फॉर्म में दीजिए। यू अंडरस्टैंड? कहीं पर अपना काम बचाने के लिए they adopted this posture that you put it into your e-संबंध PRMS as well as physical copy में हमें ला दो। सर आपने एंट्री किया है कि नहीं किया है? इस बार अगर हमसे पूछेंगे कि 2 बार किया है, डबल पूरी देखने को मिलेगा। आप देख लीजिए आपका e-संबंध काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। It is height of expectation that you ask the retired old officers to struggle with your computer system. We'll take up this matter. अब तो अपने हाथ का अनुभव किया, पहले सुनते ही थे इतने सारे प्रॉब्लम हो रहे हैं, अनुभव भी किया, मिलसे है। अगर आप कहेंगे कि इस संबंध के थ्रू आइए तो विल कम ओनली थ्रू इस संबंध, फिजिकल नहीं जमा करेंगे। Whereas your auditors demand physical copies देखने के लिए, which is a necessity, especially for a government organization. तो हम बोलते हैं तो आप करवाइए अपना ही संबंध में जो करवाना है और make it as simple as possible। जैसे पहले कोई कंप्लेंट नहीं था, उसमें जो एंट्री करते थे एंट्री चली जाती थी, ऐसा होता। अभी देख रहे हैं कि वो पूरा आधा घंटा तक एंट्री करने के बाद देखते अचानक हो गया, फिर से रिपीट कीजिए, उसको कीजिए। विल टेक अप विद द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। आई थिंक देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट इन अप्रोच इन द कॉर्पोरेट इटसेल्फ विद 2 फंक्शंस, 2 डिपार्टमेंट्स। एक है HR है, which has to manage the people, which has to respond to the people, और दूसरा है जो करना चाह करके थोप देता है, IS डिपार्टमेंट।
उन्होंने अपनी तरफ से भी इनोवेटिव चीज तैयार किया है, दे दिया HR को इम्प्लीमेंट करने के लिए। HR है कि getting feedbacks from retired officers, from serving officers and all the people. तो this is an issue जो कि हमारे समझ में है, हमारे समझ में आ गया है, हम समझते हैं, विल टेक अप कॉर्पोरेट प्लान। जी इसमें हम एक चीज बता दूं मैं कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, सारी एंट्री जैसे बताया लोग आपने सारी एंट्रीज कर ली, ये सब कुछ कर ली। अब आपके पास 3 वाउचर है जो आपने उसमें एनक्लोज कर दें, कोई प्रोविजन ही नहीं है आज की तारीख में इस संबंध में कि हम उसका कॉपियां डाउनलोड कर सकें, कोई सब है ही नहीं। और जब तक आप पेपर एनक्लोज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने जाएंगे फिर प्रोसेस ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा होगा उसका। 3 महीने पहले जो मैंने कहीं पे टेस्ट कराया थे अपने, उसका पेमेंट मैं अभी तक नहीं डाल पाया। मैं खुद अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि फॉर्म 2 बार 3 बार 4 बार भरा मैंने, जैसे उन्होंने ये बताया वैसे। और उसके बाद जब मैं सबमिट करता हूँ तो वो क्योंकि आप अपने कॉपी एनक्लोज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई तरीका ही नहीं है कि वहाँ डाउनलोड कर देना कि इसको साथ लगा के एनक्लोज कर दें, तो इसलिए फिर जा नहीं पा रहा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उससे पहले हमें कभी प्रॉब्लम नहीं थी। पुराने सेटअप में हमें ई संबंध से पहले कभी, मैं तो 18 साल हो गए रिटायर हुए, 18 साल में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने कभी मेरा ऑफिस नहीं गया 18 साल में, कभी मेडिकल में मुझे एक दिन भी रिमाइंड कराने की जरूरत पड़ी। जिस दिन मैं भरता था तीसरे दिन पेमेंट मेरा ऑटोमेटिकली बैंक में आता। पता नहीं ये ई संबंध होने के बाद ये प्रॉब्लम, तो हम डेफिनेटली वी आर आल्सो सीज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड वी विल डेफिनेटली टेक अप विद मैनेजमेंट एट द टू। This is regarding our medical scheme. In REC में क्या है कि अगर आप जो मेडिकल जो आपके पेपर्स हैं उनको वो स्कैन करके भेजते हैं टू द मैनेजमेंट, फिजिकल उनको जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं कीप दिस मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन एंड बिल्स विद यू अप टू 3 years। 3 years में कोई एम्बिग्यूटी आती है, कोई कैन आस्क फॉर ओरिजिनल वंस, अदरवाइज ओरिजिनल इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड वन मोर थिंग, उन्होंने वहां पे एक कंट्रैक्चुअल एक बंदा बिठाया हुआ है आरईसी में, कंट्रैक्चुअल है, तो जो कि इन सब रिटायर्ड का सिंगल विंडो, वो अगर वहां जाओ तो स्कैन भी करता है, आपके क्वेश्चंस के जवाब भी देता है। सिंगल विंडो है वो, आरईसी में है। आरईसी बस हमारी रानी की पहले स्कूल में भी, आजकल गुड़गांव चलेगी। मेरी ये सबमिशन है, दैट कैन बी एक्सप्लोर्ड। आपने बिल्कुल ठीक कहा। ई संबंध में भी यही प्रोविजन है जो आप बता रहे हैं कि आरईसी में है, वो यही ई संबंध में भी है। प्रोवाइडेड ई संबंध ठीक से प्राप्त करें, आपको कहीं नहीं जाने की जरूरत है। मैं बता रहा हूँ, मैं 18 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि 18 साल में मैं एक बार भी मेडिकल बिल के लिए मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक बार भी 18 साल। ये सिर्फ ई संबंध आने के बाद प्रॉब्लम हुई है, अदरवाइज आप सिर्फ स्कैन करिए और अपलोड कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपने। और सेकंड डे थर्ड डे आपकी पेमेंट अपने आप आएगी। पहले हो रहा था, वही इंडियन ऑयल है वो पहले की था, अभी है, मगर ये सिर्फ ये इन्होंने पोर्टल चेंज किया है। तो पहले पोर्टल का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या बोलते हैं उसको, अभी जो ई संबंध बोल रहे हैं इसका पोर्टल का दूसरा नाम बता रहे हैं। हमें भी ओरिजिनल की जरूरत नहीं, मुझे समझाने को कह रहा हूँ। आपको पेपर तो आपके घर पे रहेंगे, आप उसकी कॉपी अपलोड करेंगे, पेपर जरूरत नहीं है। अभी तक हो रहा था इंडियन ऑयल में, ये मैं तो 18 साल हो गए, ज़्यादा पहले रिटायर के लोग सर्विस पार्टी है, उन्होंने कभी ऐसे प्रॉब्लम फेस नहीं करी। हम कर रहे थे, इंडियन ऑयल में भी हो रहा था ये। आरईसी तो हमसे बहुत पीछे है। आरईसी कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद अस। ठीक है, वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल आदमी उठा दिया, वो अलग बात है, बट इंडियन ऑयल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम पहले नहीं होती थी। कोशिश करेंगे अपनी पूरी, हम सबको ये हमारे दिमाग में है पूरा कि ये प्रॉब्लम है, हमारे रिटायर्ड ऑफिसर्स को दिक्कत हो रही है, तो हम इसका समाधान निकाल पाए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन रहा है
कि जिन लोगों के भी पिछली मीटिंग और इस मीटिंग के बीच में बर्थडे आते हैं, हम उनको विश भी करते हैं और उनकी तरफ से आप सब लोगों को स्वीट्स भी खिलाते हैं, आपका भी पूरा करते हैं। किसी का बर्थडे है? आपका बर्थडे है? नहीं, मैं तो मेरे को तो हुक्म दिया ना मैंने। अच्छा लेना है, मैं तो मुझे समझ नहीं आया जब आपने पैच लगा ली तब पता चल पड़ा। अरे वाह, मेरा ही नंबर आ गया। थैंक यू। फोटो ले लो। फोटो है। अरे मेरे दोस्त है। ये एक दफा हो रहा है। फॉर्म जो भरना चाहे भर दीजिए, मगर अभी फिलहाल जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। मैंने बताया ना 1/9/2014 में जो 58 इयर्स के थे, उसके बाद के जो रिटायर हुए हैं उनके लिए दैट मींस इंडियन ऑयल से जो कोई 1/9/2016 में रिटायर हुआ है, उसके बाद के लोगों को अलाउड है। अभी भी प्रशासन साहब ने उनसे पहले वालों को मांगा तो जो देना चाहते थे, मगर मैंने तो बड़ा क्लियर समझाया है कि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है अभी फिलहाल। क्लियर, अगर आप करना चाहें तो उससे नुकसान कुछ नहीं है, मगर जब आप पैसा मांगे तो ध्यान रखना कि आपसे पहले 35 लाख रुपए जमा करा दीजिए, जैसे बताया तीरपाल जी ने कि 35 लाख रुपए जमा करा दिए, फिर देखिए, फिर आप सोचिएगा। यही करूंगा कि कभी भी गलती से कोई हैवी अमाउंट ईपीएफ में बिल्कुल जमा ना करें, चाहे 30 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 50 लाख हो। ये आपकी हार्ड मनी है, अगर एक बार गया तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी भी चेंज कर सकती है और आपकी रकम भी डूब जाएगी। और आज आप हैं, कल नहीं है, ये ईश्वर को भी नहीं पता। ईश्वर को पता है। चलो ईश्वर को पता है, लेकिन आपको भी पता है कि आपकी हार्ड मनी है, ईश्वर को पता है, उसी को तो पता है। और रुक जाइए आप। अब मैं इन लोगों का बर्थडे इस पिछले 2 महीने के पीरियड में आया है, पिछली मीटिंग में और इस मीटिंग के बीच में मैं उनका नाम अनाउंस करूँगा। वो एक बार खड़े हुए और बाकी लोग तालियां बजाएं उनके लिए। ठीक है, हो गया है। श्यामलाल जी, श्यामलाल जोड़िया। मैंने पिछले बार भी अनाउंस किया था, दोबारा भी करूँगा। ये बहुत अच्छा इनका कनाल साहब का गेस्चर रहा है कि लास्ट मीटिंग में इन्होंने 51,000 रुपीज डोनेट किए थे IRODF में। ये जिन लोगों के बर्थडे होते हैं उनकी तरफ से स्वीट्स खाई करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे स्वीट्स उनकी तरफ से कौन ला रहा है? ये हम नहीं ला रहे हैं, ये उनकी तरफ से हर जिसका बर्थडे होता है उसको 200 रुपया साल में एक बार देना होता है, जिससे हम उस पैसे को एक जगह रखते हैं, उसी में से ये स्वीट्स हम लेके आते हैं। तो अब मेरा रिक्वेस्ट ये है कि जिन जिन के बर्थडे पिछले अक्टूबर से हमने स्टार्ट किया था, फर्स्ट मीटिंग हमारी अक्टूबर में हुई थी और अब हुई है, तो अक्टूबर ऑनवर्ड जिसका भी बर्थडे आया हुआ है वो श्री RN माथुर जी हमारे ट्रेजरर साहब हैं, इनको 200 रुपया आज दे दीजिएगा प्लीज, अपने आप दे दीजिएगा। ये नाम नोट कर लेंगे आपका और ये हमारी उस टिक्की में चला जाएगा। जिनका भी बर्थडे अक्टूबर ऑनवर्ड अब तक आया है तो वो 200 रुपया मासूम साहब को दे दें, ताकि ये प्रोग्राम जो है हमेशा चलता रहे, ये बंद ना हो। अब मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप बाहर चाय नाश्ता तैयार है, ये बात करिए, आराम से चाय और नाश्ता लीजिए, अपने अगली मीटिंग में धन्यवाद।